ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫਨਕਾਰ ਮੈਥਸ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਫਨਕਾਰ ਮੈਥਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਥ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜੀਐਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਨਕਾਰ ਜੀਐਸ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਕੇ ਡਿਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਟਾਈਪ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੂਸਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਸਪੀ ਦਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, PSSB ਦਾ ਸੌਰੀ PSPCL ਹੋ ਗਿਆ, PSTCL ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ A ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 96 ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, B ਆਪਾਂ ਨੂੰ 97 ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, C ਆਪਾਂ ਨੂੰ 98 ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ A² + B² + C² - AB - BC - CA ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ A³ + B³ + C³ - 3ABC ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ A + B + C ਦੇ ਐਂਡ A² + B² + C² - AB - BC ਤੇ -CA। यानी यह मेरे हिसाब के नाल सारिਆਂ ਦੇ याद हो गया होगा जेकर कल की क्लास लगाई है एंड इस कंसैप्ट ते आपां लगभग सारे क्वेश्चन कर लए ने। हुण सिर्फ इस चीज़ ते फोकस रखना, अज आपां इस चीज़ नूं एक फार्मूले दे विच क्रिएट करांगे। यानी जेकर इस फार्मूले दा पहला फार्मूला हो गया, अज दा आपां फार्मूला क्रिएट करने, क्रिएट करना सीखोगे, फार्मूला अपने आप याद रह जाऊगा। जे मान लो मैं इत्थे A² + B² + C² - AB - BC - CA लिख ला तो इसे नूं मैं दोबारा लिख ला A² + B² + C² - AB - BC - CA लिख ला। राइट, यानी आह ते आह बराबर है, जिमें आप कह सकते हैं कि 2 = 2 दे आ, 1 = 1 दे आ, 3 = 3 दे आ, 5 = 5 दे आ, 6 = 6 दे आ। राइट, उस तरीके दे नाल मैं A² + B² + C² - AB - BC - CA नूं एज इट इज़ ही लिख लिया A² + B²। तुसीं कहोगे आए दोबारा क्यों लिख लिया, आपां फार्मूला क्रिएट करना किवें करांगे, देखो ध्यान दे नाल। मैं की करदा इस पूरे नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर देना ते 2 नाल ही डिवाइड कर देना। कोई फर्क पिया, कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि 2 नाल 2 तां कट्टिया ही जांदा हुंदा, तां बेसिकली ये बराबर दे बराबर ही रह जाणगे। मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करता, 2 नाल डिवाइड करता। तुसीं कहोगे आए क्यों करता, हुण देखदे आपां फार्मूला बनाउणे। जिहड़ा नीचे वाला 2 आ उहनूं मैं एज इट इज़ रख लिया, जिहड़ा उपरला 2 उहनूं मैं सारे नाल मल्टीप्लाई करती, यानी यह बन जाऊगा 2A² + 2B² + 2C² - 2AB - 2BC - 2CA। बस पूरी क्लास दे विच सिर्फ आही इंपॉर्टेंट है, उस तो बाद तां चुटकियां मार मार क्वेश्चन कढोगे ध्यान दे नाल। राइट है, यानी कहने का मतलब आ 1/2 मैं बाहर रख लिया, आ 2 कल्ले कल्ले नाल मल्टीप्लाई करता, 2A² 2B² 2C² 2AB 2BC 2CA ये सारा मैं अंदर लिख लिया 2 नाल गुणा करके। राइट, हुण मैं इहनूं एवें भी लिख सकदा 1/2 ये तां ठीक है, इहनूं मैं A² + A² भी लिख सकदा 2 बारी क्योंकि 2 बारी है, इहनूं मैं B² + B² लिख सकदा क्योंकि 2 बारी है, C² + C² इहनूं मैं 2 बारी लिख सकदा। बाकी इहनूं एज इट इज़ ही लिखिया रहना तो -2AB - 2BC - 2CA। तुसीं हजे भी सोची जांदे होगे भी आपां इह कर क्यों रहे हां, पता लगू एंड ते एक फार्मूला बन जाना। देखो ध्यान दे नाल, हुण मैं इदों बाद इसे नूं ही एवें भी लिख सकदा गा कि भाई आह A² नूं मैं इत्थे लिख लिया, आ एक B² चक लिया। राइट है, इत्थे A² + B² ते -2AB इन्हां नूं मैं इकट्ठा कर लिया। राइट है, इस तो बाद आह मैं चक लिया जी
ए स्केयर आ चक लिया तो एक मैं सी स्केयर चक लिया, यानी ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac राइट। जाए कर लो, इनू एक बारी कट लो, इनू एक बारी कट लेने। पहले आप बी नू चक लेने, बी नू चक लिया तो एक सी नू चक लो, यानी बी स्केयर प्लस सी स्केयर तो माइनस 2bc कर लिया राइट। हुण की रह गया अपने को, एक ए स्केयर रह गया, एक सी स्केयर रह गया, एक ए स्केयर रह गया, एक सी स्केयर रह गया राइट। यानी कहने का मतलब आप की कर सकते हैं ध्यान दे नाल, यानी आप सी स्केयर ले लिया प्लस ए स्केयर ले लिया माइनस 2ca ले लिया। लिख सकदा कि नहीं लिख सकदा? गल उही है, बस उन्होंने मैं नेड़े तरन कर लिया, यानी जेडे आह ए स्केयर सीगा इहनू ए बी स्केयर दे नाल मिला के मैं माइनस 2ab लिख लिया, मुड़ के आह बी स्केयर नू मैं सी स्केयर दे नाल लिख लिया, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc लिख लिया, फिर आह सी स्केयर ते प्लस ए स्केयर नू लिख लिया मैं ते माइनस 2ca लिख लिया। ये मैं एवें क्यों लिखिया? क्योंकि फार्मूला बनेगा, की बन गया फार्मूला ध्यान दे नाल, 1/2 हुण ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। पता फार्मूला की हुंदा भला? यह हुंदागा फार्मूला a माइनस बी दा होल स्केयर। a माइनस बी दा होल स्केयर की हुंदा भला? a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab हुंदागा, जेकर तुसी छोटे हुंदे ने माड़ा मोटा भी पढ़िया होवे। यानी कहने का मतलब मैं इहदी थां ते a माइनस बी दा होल स्केयर लिख सकदा, प्लस आ बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc, b माइनस सी का होल स्केयर बनूगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc, यानी यदि थां ते मैं की लिख सकदा b माइनस सी का होल स्केयर, सेम c प्लस ए, सी माइनस ए का होल स्केयर बन जाऊगा, यानी सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac, यानी कहने का मतलब c माइनस ए का होल स्केयर बन गया, c माइनस ए का होल स्केयर बन गया। ध्यान दे नाल बस इत्थों ही फार्मूला अपना क्रिएट होके निकले आया। कहने का मतलब की आ कि जेड़ा भाई आह आयागा, जेड़ा आह आया पूरा, यानी 1/2 ब्रैकेट दे विच की अपने कोले 1/2 ब्रैकेट दे विच की आ a माइनस बी दा होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी दा होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए दा होल स्क्वायर किहदे बराबर है भला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी आपां इत्थों लैके इत्थों तक आ गए। यह फार्मूला उही है, यह फार्मूला उही है। जेकर नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है ना, मैंने लगता थोड़ा घट रह गया होगा, तो इतने ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतने दिख रहा, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर कि हो गया। ये उही है जो आप उपर लिखा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर कि आ गया, ए करा के 1/2 ए माइनस बी दा होल स्क्वायर बी माइनस सी दा होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए दा होल स्क्वायर। ते आही तुसी अज दा कंसैप्ट है जिहड़ा याद रखना है, याद रखना है। हुण देखो क्वेश्चन किवें निकलदा तुहाडे सामने, देखो यानी कहने का मतलब जिहड़ा अज दा फार्मूला जां अज दा जिहड़ा कंसैप्ट है वो हमेशा ध्यान दे विच रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हुंदा जी 1/2 ए माइनस बी दा होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी दा होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए दा होल स्क्वायर। पर इस नूं रट्टा नहीं लाउणा, मैं तुहानूं दसता कि यह बनिया किवें आ, दिमाग दे विच रखिया करो कि आह ए माइनस बी दा होल स्क्वायर तां बनिया क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। उवें एवें सारा दिमाग दे विच रहूगा तो फार्मूला याद रखने दे विच आसानी हो जाएगी। तो आही अपना अज दा कंसैप्ट है, इसे ते ही आपां हुण क्वेश्चन देखियो खलारे पाउंदे। पहला क्वेश्चन अज दी स्क्रीन दा देखो ध्यान देना, तां ए बराबर है 96, बी बराबर है 97, सी बराबर है 98। तो आपको पूछ लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किदे, तो ये किदे बराबर होंदा जी? ए बराबर होंदा 1/2 ए माइनस बी दा होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी दा होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए दा होल स्क्वायर ये बराबर होंदा। तो जो मैं रखिया तो यह 1/2 ए माइनस बी का मतलब की आ 96 माइनस 97, 96 माइनस 97 दा होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का मतलब की आ 97 माइनस 98, 97 माइनस 98 दा होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का मतलब की आ कि 98 माइनस 96 दा होल स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया मेरा 1/2 96 माइनस 97 कितना होंदा -1, -1 का होल स्क्वायर की बन जू 1 बन जू, -1 का होल स्क्वायर की बन जू 1 बन जू, 98 चो माइनस 96 करेंगे 2 का स्क्वायर की हो जाऊगा जी 4 हो जाऊगा, यानी यह कितना आ गया 4 ते 2 6, यानी 1/2 गुणा 6 यानी कितना आ गया अपना आंसर यह
3 आंसर आ गया तो 3 आंसर अपने सामने पिया है ए ऑप्शन। कितना ज़्यादा सौखा कितना ज़्यादा आसान है, ये पहली बार कर रहे हो ਤਾਂ ਇਹ लिखना पै रहा, नहीं ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 96 97 1 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੋਊਗਾ, 97 ਤੇ 98 ਦਾ 1 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੀ ਹੋਊਗਾ, 98 ਤੇ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਹੋਊਗਾ, 4 ਤੇ 2 6 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ 1/2 ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦੋ ਸਿੱਧਾ 3 ਆਨਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c - a ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ 1/2 ਰੱਖਣਾ। आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ a ਬਰਾਬਰ 101 ਆ 102 ਆ 103 c ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ab ਮਾਈਨਸ bc ਮਾਈਨਸ ca ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤਾਂ 1/2 a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਮਾਈਨਸ c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਮਾਈਨਸ a ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 1/2 ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ a ਮਾਈਨਸ b ਯਾਨੀ 101 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 102 यानी -1 आ जाऊगा, -1 का स्केयर की बन जू 1 ही बन जू। एवें ही b - c 102 ਤੇ 103 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇਹ -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਉਵੇਂ 103 - 101 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ 4 ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ 4 ਤੇ 2 6 ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ 3 ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ 3 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। यानी 3 आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ, 3 आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ। अगला क्वेश्चन देखो, कहता a बराबर 97 है, b भी 97 है तो c बराबर 98 है। तो आप की करांगे जी वही 1/2 a माइनस b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/2 a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ 97 ਮਾਈਨਸ 97 a ਤੇ b ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, 97 ਮਾਈਨਸ 97 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ b ਮਾਈਨਸ c 97 ਮਾਈਨਸ 98 एक का फासला 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाऊगा, c - 98 माइनस 97 1 का फासला तो फिर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाऊगा। यानी यह कितना आ गया अपना 2/2 आ गया, यानी आंसर कितना आ जाऊगा 1 आंसर आ जाएगा, 1 ही तुहाडा आंसर है एंड 1 अपना डी ऑप्शन पिया है। काली नहीं करनी, काली अगे टोए, पहला इस नूं अपने हड्डां विच रचाओ, वार-वार प्रैक्टिस करके हमेशा याद रखना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर हुंदागा 1/2 इंटू a माइनस b दा होल स्क्वायर प्लस b माइनस c दा होल स्क्वायर प्लस c माइनस a दा होल स्क्वायर हड्डां विच रच जाना चाहिए। इन्ने बारी रिपीट करो। अगला क्वेश्चन, a बराबर 94 है, b बराबर 95 है, c बराबर 96 है तो आपां नूं पुछ लिया a दी क्यूब प्लस b दी क्यूब प्लस c दी क्यूब माइनस 3abc, जिथे मैं कल क्लास छड्ड के गया सी। पर हुण इस नूं समझण दे लई भी आपां नूं कंसैप्ट समझना पैणागा ध्यान दे नाल। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc दे बराबर है, पर आपां इहनूं करांगे किवें हुण ध्यान दे नाल, क्योंकि आपां तां अज दा जिहड़ा कंसैप्ट पढ़िआगा ओह की पढ़िआगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca पढ़िआगा कि यह 1/2 a माइनस b दा होल स्क्वायर प्लस b माइनस c दा होल स्क्वायर ते प्लस c माइनस a दा होल स्क्वायर। अज दा कंसैप्ट तां आपां आही पढ़िआ ते इदों पहिलां कंसैप्ट भी आपां एक पढ़िआ होया, याद रखना वो की कंसैप्ट सी जिहड़ा पहली क्लास दे विच पढ़िआ सी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किहदे बराबर हुंदागा जी a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c ते इदों बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आ मैं अज जाणिया ते आह मैं पहला जाणिया सी, पहली क्लास दे विच जाणिया सी। इन्हां दोनों का मिश्रण मिला के एक फार्मूला बनेगा, वो मिश्रण मिला के फार्मूला की बनूगा ध्यान दे नाल। आह तां एज इट इज़ ही लिखिया रहन दो, आह तां एज इट इज़ ही लिखिया रहन दो। a प्लस b प्लस c नूं भी एज इट इज़ लिखिया रहन दो। जिहड़ा मैं अज कंसैप्ट पढ़िया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर हुंदागा 1/2 इंटू a माइनस b दा होल स्क्वायर प्लस b माइनस c दा होल स्क्वायर प्लस c माइनस a दा होल स्क्वायर। यह मैं अज कंसैप्ट पढ़ियागा, दोने मल्टीप्लाई दे विच है, इत्थे दोने मल्टीप्लाई दे विच आ, तां 1/2 नूं मैं बाहर लिआउणा, 1/2 नूं जदों
मैं बाहर लिया तो यह की बन गया a प्लस बी प्लस सी, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। की आह फार्मूला नहीं बन गया? की आह फार्मूला नहीं बन गया? ध्यान दे नाल नोट करना, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दे जिहड़ा आपां पहला फार्मूला याद करते सी उहदे नाल ही एक कंसैप्ट जुड़ के होर आ गया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किहदे बराबर है जी? 1/2 a प्लस बी प्लस सी एंड यह आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। पर की इस फार्मूले नूं रट्टा लाउणा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपां नूं आह कंसैप्ट दोने पता ने, आह दोने कंसैप्ट पता तो इन्हां तों मिला के ही तो बनया। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर सीगा a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ए ਇਹਦੇ बराबर सी। ते आही ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਸੈप्ट ਸਮਝਿਆ ਕਿ 1/2 ਇਹਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟ ਆਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਿਆ। ਤਾਂ 1/2 ਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर सारा मैं उमें लिख लिया। राइट आ, हुण जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ध्यान दे नाल, यानी यह जिहड़ा हैगा ये कदों फार्मूला मेरे काम आऊगा जदों a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं बनता। जे a प्लस बी प्लस सी 0 ही बनता होंदा तो मैं कल पढ़ लिया सी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होंदागा जेकर a प्लस बी प्लस सी 0 होवे। पर इत्थे a 94 आ, b 95 आ, c 96 आ, तो 0 तो बन ही नहीं रहा। तो जे 0 नहीं बन रहा तो यह मतलब आह फार्मूला मेरा किसी काम का नहीं, तो मैनू होर पढ़ना पैना, मैनू होर करना पैना। तो मैं की कीता, इस फार्मूले नू होर दिमाग दे विच जदों मैं फार्मूला लेके आया तो मेरे दिमाग दे विच आया 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर बी प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मेरे दिमाग च क्यों आया? क्योंकि मैं हुणे फनकार मैथ्स की क्लास देखी। क्या बात है। ठीक है, सो कहने का मतलब की है कि 1/2 यानी a किन्ना मेरा 94, b किन्ना मेरा 95, c किन्ना मेरा 96। तो उस तो बाद मैं की कीता जी, इत्थे कढ़ लिया, यदी वैल्यू कढ़ ली, a माइनस बी यानी 94 माइनस 95 का माइनस 1 का स्केयर 1 ही बन जाऊगा, b माइनस सी 95 माइनस 96 माइनस 1 का 1 ही बन जाऊगा, 96 माइनस 94 सी माइनस ए 2 का स्केयर 4 बन जाऊगा। यानी कहने का मतलब 1/2 94 95 96 इन्हों जोड़ दो, या तो जोड़ दो, जोड़ना तो पैना ही है, तो जोड़ लो 90 90 90 सीधा 270 बन गया। 4 ते 5 9, 9 ते 6 15 यानी 285 बन गया। 285 इंटू आ कितना आ गया 4 ते 2 6, तो 2 इनू कट दो भाई, यानी 285 नू 3 नाल गुणा कर दो। 285 नू 3 नाल गुणा करोगे तो 28 30 पहला 280 नू कर लो, 28 30 कितना होंदा 84 होंदागा, यानी 840 पहला सीधा आ जाऊगा, फिर 5 बच गया सी 280 नाल कीता, 5 30 15 15 जोड़ दो तो 855 अपना आंसर आ जाऊगा। यानी 855 अपना सी ऑप्शन पिया है, 855 अपना सी ऑप्शन पिया है। सो इन्ना खतरनाक क्वेश्चन आप किन्नी चुटकियां दे विच किन्नी आसानी दे नाल कर लिया। जस्ट उस कंसैप्ट नूं समझना जिहड़ा मैं तुहानूं वार-वार कह रहा कि अपनियां कापियां दे विच उन्हां चीज़ां नूं नोट करो। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी 94 प्लस 95 प्लस 96 आह आ गया। उस तो बाद ये सारा तुहानूं पता लग गया, सीधा आपां उही वैल्यू पुट करनी है, आंसर तुहाडे सामने। अगला क्वेश्चन आपां करन दी कोशिश करदे हां, सेम इहो जिहा। a बराबर 1001 आ, b बराबर 1002 आ, c बराबर 1003 तो आपको पूछ लिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किहदे बराबर होगा। तो आपको पता कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी आ गया, उस तो बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। यानी कहने का मतलब मैं वैल्यू पुट की तो 1/2 a प्लस बी यानी 1000, 1 प्लस 1000 2 प्लस 1000 3 आ गया। उस तो बाद मैं किया इनू भाई ध्यान दे नाल, यानी a माइनस बी का 1000 यानी 1 का डिफरेंस है तो 1 का 1 आ गया, 1 का डिफरेंस है 1 का स्क्वायर 1 आ गया, c माइनस ए 2 का डिफरेंस है 2 का 4 आ गया। यानी कहने का मतलब यह मेरा कितना आ गया जी, यह आ गया, इन्होंने जो जोड़िया 1000 1000 1000
3000 3001 3000 3 3006 बन गया 3006 बन गया यानी इत्थे 4 ते 2 6 आ गया 2 नूं कट्टांगे तो 3 बन गया यानी 3006 नूं मैं 3 नाल मल्टीप्लाई कर दिना तो मेरा कितना आंसर आ जाऊगा जी 3 6 की 18 ते 90 18 मेरा आंसर आ गया 3006 नूं 3 नाल गुणा किया तो 90 18 मेरा आंसर आ गया 90 18 मेरा आंसर आहा पिया 90 18 मेरा आंसर आहा पिया। समझ आई गल भाई। कंसैप्ट नूं ध्यान दे विच रखना हमेशा कंसैप्ट नूं ध्यान दे विच रखियो फार्मूला पुट करो कंसैप्ट रखो फार्मूले नूं रट्टा कदे नहीं लाउणा ये फार्मूले नहीं ये कंसैप्ट है बेसिकली फार्मूला तो कहना पैंदा है ना। सो कहण दा मतलब की आ कि इन्हां चीज़ां नूं रट्टा ना लाओ काफ़ी थावां ते तुहानूं शॉर्टकट सिखाए जांदे आ वो शॉर्टकट वाल कदे ना जाओ इन्ने खतरनाक शॉर्टकट हुंदे आ जिवें खास करके इन्हां क्वेश्चनां नूं तुसीं जेकर शॉर्टकट दी दुनिया दे विच जाओगे तो तुहानूं पता टीचर आके शॉर्टकट दे विच किवें कराउंदा कि A बराबर 1001 है B बराबर 1002 है C बराबर 1003 है इहदी वैल्यू कड्ढणी आ तां तुसीं भाई 1002 नूं सिद्धा 9 नाल कर दो अगला कहंदा अच्छा जी जदों कीता तां सच्ची 9018 आंसर आ गया। जवाक तो कहता भी साडे मास्टर ने तो इन्ना लम्मा कराया आ मास्टर बड़ा घैंट है सीधा 9 नाल ही करती गुणा क्या बात है आंसर तो आ गया। वो जवाक फिर देखता भी अच्छा शॉर्टकट फिर वो नाल दी नाल मास्टर एक होर क्वेश्चन दे दिंदा मास्टर कहता दसो फिर इसदा आंसर की आऊगा। जवाक कहता मास्टर ने कहा भी 9 नाल गुणा कर दो तो मैं 95 नूं 9 नाल गुणा कर देना 95 नूं 9 नाल गुणा किया तो 90 नूं 9 नाल गुणा किया 810 45 जोड़ते यानी 95 नूं 9 नाल गुणा करके 855 आ गया। तो जवाक गदगद हो उठदा उस चैनल नूं सबसक्राइब करदा उस चैनल नूं फॉरवर्ड करदा दोस्तां मित्रां नूं दसदा कि देखो साडा मास्टर शॉर्टकट कराउंदा सर तुसीं भी शॉर्टकट कराउणे हो। मैं कहना भाई मैं तां नहीं कराउंदा तुसीं जाओ दफा हो राइट। कहण दा मतलब वो इन्ना मास्टर तो खुश हो जांदा गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 यानी वो कहंदा भी 855 क्या बात है इन्ना तां करन दी लोड़ नहीं सीधा 9 नाल गुणा करो मास्टर ने तां सानूं शॉर्टकट कराता क्या बात है। नाल दी नाल पेपर दे विच जांदा पेपर दे विच जाके क्वेश्चन नूं देख के बड़ा खुश हुंदा वो बड़ा खुश हुंदा जवाक देख के कहंदा भी A बराबर 94 B बराबर 96 C बराबर 98 मैनूं मास्टर याद आ गया जिन्हें मैनूं शॉर्टकट कराया सी जिन्हें मैनूं 9 नाल गुणा करनी सिखाई सी क्या बात है। वो कहंदा लो जी मैं 96 नूं 9 नाल गुणा कर देना 9 6 54 5 असल आ गया 9 9 81 ते 864 आ गया। वो कहंदा लै आंसर तो मेरा पिया 864 आंसर आ गया। आंसर की घरे आके देखी गलत हो गया ओहो हो फिर उस मास्टर ते गुस्सा आउंदा कि यार की गल हो गई मास्टर तू तो शॉर्टकट कराया सी पेपर दे विच शॉर्टकट क्यों नहीं लग्या क्योंकि रट्टा मारिया सी। एंड उस मास्टर ने की लेना उस दी शॉर्टकट वीडियो ते इन्ना ज़्यादा सबसक्राइब आ गया इन्ना ज़्यादा कमेंट आ गया तुसी मास्टर ग्रेट हो तुसी मास्टर ग्रेट हो इहो जिहे मास्टरां तो बचो तुहानूं ओह भटका रहे ने। समझ में आई बात। सो कहण दा मतलब की आ शॉर्टकट का पता है कि नुकसान है इस करके पेपर दे विच ओह जिहे क्वेश्चन पाए जाते तो तुहानूं उलझाया जाता इन्हां चीज़ों तो बचो। काफ़ी जणिਆਂ ਦੀਆਂ अखां खुलियां होणगीਆਂ पर फिर भी उन्हां ट्रैप दे विच जवाक फस जाते हैं बचो जिन्ना बचिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब एवें नहीं करना कदे भी क्योंकि थोनू मास्टर ने यह दस्या नहीं जां जे दस्या भी है तो जवाक इन्ना ध्यान नहीं दिंदा कि इत्थे भाई यह लगातार संख्यावां यानी 1001 1002 1003 है तो हमेशा जो लगातार होगा तो ऑबवियस गल है कि एक का डिफरेंस एक बनूगा एक का डिफरेंस स्केयर एक बनूगा 2 का डिफरेंस स्केयर 4 बनूगा यानी ये 6 ही बनूगा 6 बनूगा तो 2 नाल कट्टिया ही जाऊगा यानी गुणा 3 आऊगा। तो जो आह लगातार संख्यावां होणगियां तो ऑबवियस गल है 1000 गुणा 3 इत्थे भी एक 3 आऊगा 3 3 9 बनता इसे करके आप 9 नाल मल्टीप्लाई करते हैं। पर वो इन्ना मास्टर समझाउंदा नहीं उन्हें की लेना उन्हें तो थोनू खुश करना है कि अच्छा जी गुणा 9 नाल करती जवाक इन्ना दिमाग लाउंदा नहीं अजकल शॉर्टकट वाला ज़्यादा भजदा इसे करके नंबर घट ते बाद दे विच आपां पछताउणे आ फिर आके कहने कि सर उत्थे 15000 दिता सी तुसीं सानू इन्ने सस्ते दे विच क्यों दे रहे हो जां सस्ते दे विच करा दो साडी फीस माफ़ कर दो साडे पहलां पैसे खराब हो गए। तो फिर मेरे कोले आके जो ये कहने हो तो फिर मैनूं दुख हुंदा कि जेकर मैं 15000 फीस रखी हुंदी तो शायद मेरी जेब भर जाती। पर गल चलो ठीक है हरेक दा अपना अपना तरीका है। समझ आई गल भाई तो इन्होंने शॉर्टकटों तो बचो। मेरा 864 इत्थे जान के ही लिखा हुआ सो शॉर्टकट वाली वीडियो कदे ना देखो मैं कंसैप्ट ते ज़्यादा जोर दिना इसे करके कहना कि शॉर्टकट कंसैप्ट तो बाद अपने आप तुहाडे कोले भज के आ जाऊगा। शॉर्टकट कदे भी सुक्सैस का कारण नहीं बनता ये गारंटी है। टाइम लो पहले टाइम लाना पैना मैनूं जवाक पुछ लैंदे आ कि सर इन्ना तुसीं मैथ कराता सानूं शॉर्टकट दस दो सानूं वीडियोज़ मेन दस दो मेन कुछ नहीं हुंदा पेपर दे विच सारा करना पऊगा। चलो खैर आ क्वेश्चन आप करते हैं हुण इत्थे 94 96 ते 98 आ
इस फार्मूले का जोड़ा कंसैप्ट उही कि अपने दिमाग दे विच ये चीज़ रहनी चाहिए आ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर तो इत्थे आ जाऊगा जी ए माइनस बी दा होल स्केयर प्लस बी माइनस सी दा होल स्केयर प्लस सी माइनस ए दा होल स्केयर, यानी आह बच गया। तो इस तो बाद की आ गया जी 1/2 यानी 94 प्लस 96 प्लस 98 आ गया। ठीक है, उस तो बाद ए माइनस बी का होल स्केयर यानी 2 का फासला, 94 माइनस 96 2 का फासला तो 4 आ जाऊगा, फिर 2 का फासला तो फिर 4 आ जाऊगा 2 का स्केयर, फिर 98 माइनस 94 4 का फासला तो फिर कितना आ जाऊगा जी 16 आ जाऊगा। राइट, तो 1/2 इन्हों जोड़ लो 90 90 90 270 270 4 ते 6 10 ते 18 288 आ गया, 288 आ गया गुणा 4 ते 4 8 ते 16 24 बनता गा, यानी 2 गुणा करोगे तुसी 12, यानी 288 नूं पहला 10 नाल कर लो, नाल 0 ला दो, फिर 288 नूं 2 नाल कर लो, यानी इहदा जस्ट दुगना करना गा तो 8 यानी 16, फिर आ जाऊगा 16 17 आ जाऊगा, फिर 2 दूनी 4 ते 1 5 आ गया, यानी ये 576 जोड़ दो 6 यूनिट डिजिट आऊगा, यानी अपना कितना आंसर आ गया 3456 आंसर आ गया, 3456 अपना आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब इस तरीके के नाल जेकर क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा वधिया रहोगे, कंसैप्ट टाइम जमा नहीं लगता जेकर आउंदा होवे क्वेश्चन। समझ लग गई ना कितना वधिया क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसे करके कहना कि भाई इन्होंने वीडियोज़ को शेयर करना जरूर बनता गा, तो लाइक तो करना। नवा चैनल है, इस नवे चैनल को भी आप रेस अकैडमी वांगू ਵਧਾਉਣਾ अगे। राइट, चलो खैर, तो उही तरीका फिर 1/2 हुण मैं डायरैक्ट लिख सकदा कि ए प्लस बी प्लस 6 इत्थे 96 आ गया, इत्थे भी 96 आ गया, प्लस 97 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बन गया। शॉर्टकट जो आप इत्थे कीता कि ए माइनस बी का होल स्केयर, ए माइनस बी यानी 0 का फासला तो 0 ही आ गया, फिर 1 का फासला 1 का स्केयर 1 ही बन जाऊगा, फिर 97 माइनस 96 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 1/2 इन्हों जोड़ लो 90 90 90 370 है ना, सॉरी 270, 6 ते 6 12 ते 7 19, यानी 299 बन गया, 299 बन गया। तो इतने सॉरी 270 ते 19 कितना आऊगा 299 है ना, हाँ 6 ते 6 12 ते 7 19 कितना आ गया 299 तो इत्थे कितना आ गया 2 ही आ गया, 2 नाल 2 कट्टिया गया, यानी आंसर अपना कितना आ गया 299 आ गया, 299 अपना आ गया, 299 अपना आ गया। समझ आई बात? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो है उही, हुण कंसैप्टां नूं मिलाता तां ही कहने भी दिमाग लाउणा बस अपना ध्यान दे नाल। हुण देखो आपां नूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर दे रखा, यह किहदे बराबर हुंदा आपां हुणी कढ के हटिया, ये बराबर हुंदा जी ए प्लस बी प्लस सी दे ते 1/2 जां बाहर ही कढ लो, 1/2 तो आपां बाहर ही कढ रखिया हुण। ठीक है, यानी 1/2 ए प्लस बी प्लस सी दे ते ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस बी माइनस सी का होल स्केयर प्लस सी माइनस ए का होल स्केयर ये बराबर हुंदा है। राइट, आपां इह करिया तो नीचे की आ गया, नीचे आ गया जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी ते माइनस सी ए। हुण एक चीज़ ध्यान नाल देखण वाली है, इत्थे एक चीज़ ध्यान नाल देखण वाली है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दा अज आपां कंसैप्ट पढ़ के हटिया, यह किहदे बराबर हुंदा, यानी इहदी थां ते मैं डायरैक्ट की लिख सकदा, इहदी थां ते मैं लिख सकदा डायरैक्ट 1/2 ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस बी माइनस सी का होल स्केयर प्लस सी माइनस ए का होल स्केयर लिख सकदा ही लिख सकदा। अज मैं डायरैक्ट यही पढ़िया तो 1/2 कट्टिया गया, आह पूरा ये नाल कट्टिया गया, मेरे कोले सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी ही बच गया। तो इनू मैं जो जोड़ूंगा 20 प्लस 30 प्लस 50 आ गया, तो इन्हों का जोड़ कितना बन गया 100 बन गया, 100 मेरा आंसर है, 100 मेरा आंसर है। हुण की यह कंसैप्ट अज की क्लास चों बाहर सी नहीं, ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, बस ध्यान ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਭਲਾ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਿਲਾਓ ਦਿਮਾਗ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ a प्लस b प्लस c a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर माइनस ab माइनस bc माइनस ca आ भी तो मैं पढ़ रखा गा, तो नीचे मेरा ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, तो मैंने 2 ਵਾਰੀ भी करन दी लोड़ नहीं सी, 2 ਵਾਰੀ भी करन दी लोड़ नहीं सी, कट्टे ही जाते, तो a प्लस b प्लस c ही रह गया, जोड़ोगे 20 30 50 50 100 बन गया, यानी आंसर मेरा डायरैक्ट आ गया। समझ में बात आई? ठीक है ना। सो ये चीज़ है भाई इस तरीके मैथ करना चाहिए है। चलो खैर एक चीज़ थोड़ा मैं दस दिना, एप्लीकेशन अपनी जरूर इंस्टॉल कर लो, उत्थे मैं जीके एडिक्शन वगैरह
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PDF ਮੈਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ PDF ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PDF ਵਗੈਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਮੈਥ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ a³ + b³ + c³ - 3abc ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 1/2 a + b + c, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ + b - c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ + c - a ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ + b - c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ + c - a ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/2 a + b + c ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ a + b + c ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ 30 ਤੇ 40 70 70 50 120, 120 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, 120 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 60 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 60 ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮੈਥ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਹਲੀ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਐਂਡ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ, ਬਸ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦਾ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਲਵਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, YouTube ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਨਕਾਰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਮਾ 0 to ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਹਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ a + b + c ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾਗਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜਲਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।